Okay, good morning everyone. So today we are starting with the chapter People as Resource. Remember in the last class, class 8th, you have done the chapter Resource जहाँ पे आपने types of resource पढ़ा था. What are the three types of resource? Natural, human made and human resource. So human himself is counted as a very important resource for any country. Human resource or the population of a country is an asset. Yes, not a liability. We will see further. So in this chapter we are going to discuss ki how people, we as a people, how we are a resource to our country. Yes. So there is one very important point, that is investment in human capital through education, training, medical care yields a return just like investment in फिजिकल कैपिटल. सो ह्यूमन कैपिटल क्या है? हम लोग मिलके जो वी ह्यूमन इज काउंटेड ऑल्सो एज अ कैपिटल. अब चाहे फिजिकल कैपिटल हो, है ना, यू हैव टू इन्वेस्ट समथिंग. ऐसे ही ह्यूमन कैपिटल में वी आर investing like the way of education, through the education, training and by the medical facilities. Yes, so higher the education, higher the training and better medical facility given to a people will generate higher productivity. Yes, and higher productivity will ultimately lead to the development of a country. That's why we are saying ki investment in human capital in the form of education, training and medical care is a creating a human resource. Yes. See, what is it? Not only the more educated and the healthier people gain through higher income, society gains also in other indirect ways. The advantages of a more educated or a healthier population spread to those who themselves are not adequately or given. See, so there is one story, है ना, and this idea कि कैसे स्टोरी डिफर करती है. तो स्टोरी ऑफ शाकाल, देयर आर टू फ्रेंड्स, विलास एंड साकाल. तो पहले शाकाल के बारे में पढ़ते हैं. शाकाल वॉज ए 12 year old एंड हिज मदर वॉज शीला हु इज़ डूइंग ए हाउस होल्ड वर्क. ठीक है. और जो फादर थे बूटा चौधरी, ही वॉज वर्किंग इन ए एग्रीकल्चर फील्ड. शाकाल भी अपनी मदर को हेल्प करते थे इन द डोमेस्टिक कोर्स. Even Shakal also used to take care of his brother Jitu and sister Situ. After his uncle Shyam had passed the matriculation exam, यानी मैट्रिक के जो 10th एग्जाम पास किया, but was sitting idle in the house as he had no job, Bhuta and Shale were eager to teach Shakal. They forced him to join the village school, which he soon joined. He started studying and completed. So basically, in spite of not having so much इकोनॉमिकल रिसोर्स, यानी इतना पैसा नहीं भी होते हुए, दे शीला और उसके हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम अपने बेटे को पढ़ाएंगे. उसको हायर एजुकेशन दिलाई, वोकेशनल कोर्स कराया कंप्यूटर में, है ना. और शाकाल शुरू से ही एक ब्रिलियंट बच्चा था. उसने भी अपनी मेहनत करके उसमें इनपुट दिया. अल्टीमेटली आफ्टर क्लियरिंग ऑल दिस ही गॉट अ जॉब इन द प्राइवेट फर्म, है ना. और फिर उसने और अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव किया और सॉफ्टवेयर नॉलेज में गया, है ना. और उसके बॉस ने उसके काम को एक्नॉलेज किया. ही वॉज रिवॉर्डेड विद अ प्रमोशन. सो ही इन दिस स्टोरी, शाकाल की स्टोरी में हमने क्या देखा कि मदर फादर ने अगर बच्चे की एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, यस, बच्चे को ट्रेनिंग देने में थ्रू द कंप्यूटर कोर्स के थ्रू इन्वेस्ट किया, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया इन अ पॉजिटिव वे, दैट दीज वर दी बेनिफिट्स ऑफ दैट. वहीं पे स्टोरी ऑफ विलास. यस, स्टोरी ऑफ विलास. सो विलास वॉज ए 11 year ओल्ड बॉय, सेम विलेज में रहता था, है ना. और जो उसके फादर थे वो एक फिशरमैन थे, है ना. पर वो दोस्त डेथ हो गई, जो तो मदर फिर सेल करने लगी. तो बहुत फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह विलास वॉज नॉट एबल टू गो टू दी स्कूल. इवन हिज हेल्थ वॉज नॉट ऑन अ गुड बेसिस, है ना. तो वो रेगुलरली हेल्दी भी नहीं था.
और अल्टीमेटली बड़े होने के बाद विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन दी सेम विलेज. सो हेयर इन दिस स्टोरी ऑफ विलास में हम क्या देख रहे हैं कि अगर एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक मेडिकल पे अगर कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सो इसका रिजल्ट भी ये आ रहा है, मतलब कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है. यस, see here in this paragraph it is, in the two case studies we saw Shakal went to school and Vilas did not. Shakal was physically strong and healthy. He did not to visit doctor frequently, whereas Vilas was a patient of arthritis, है ना, तो उसे बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था. शकाल ने एक डिग्री अक्वायर की कंप्यूटर में. शकाल को जॉब मिली प्राइवेट फर्म में. वेल विलास हैज़ टू कंटिन्यूड विद द वर्क ऑफ द फैमिली दैट वाज सेलिंग द फिश फॉर द अर्निंग. सो इन द केस ऑफ शाकाल, मेहनत लगी, इन्वेस्टमेंट लगा. अब देखो, इन्वेस्टमेंट हमेशा पैसे के टर्म में नहीं होता है. जो हार्डवर्क शाकाल ने पुट की, दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज ए इन्वेस्टमेंट. तो जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्टिविटी ऐड हुई. प्रोडक्टिविटी इन द केस, क्योंकि शाकाल का अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव हुआ, उसने अपनी फैमिली का लाइफस्टाइल इम्प्रूव किया. यस, सो एवरीथिंग इन टर्न्स पे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द society. So see this paragraph. Investment in human resource, why education and medical care can give high rate of return in future. Yes, and this investment of people is the same as investment in land and कैपिटल. तो जैसे हम एक नॉन लिविंग थिंग में बिजनेस के लिए कैपिटल करते हैं टू अर्न द प्रॉफिट, तो एक बच्चे के एजुकेशन पे, एक उसकी मेडिकल केयर पे इन्वेस्टमेंट भी एक रिटर्न लेके आता है. रिटर्न इन द सेंस ऑफ सक्सेस इन द लाइफ, रिटर्न इन द सेंस ऑफ इम्प्रूविंग द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ. यस, देखो, अ चाइल्ड टू विथ इन्वेस्टमेंट मेड और ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ can yield a higher return in future in the form of higher earning and greater contribution to society. Yes, and देखो, जैसे कंट्रीज़ हैं, जापान, उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्या किया है, ह्यूमन रिसोर्स में. इसलिए देखो, जापान के पास अब नेचुरल रिसोर्स नहीं है, बल्कि इंडिया में कितना ज़्यादा है, बट उसके बाद भी जापान इज काउंटेड एज वन ऑफ द डेवलप्ड एंड रिच कंट्रीज. वाई? बिकॉज जापान ने इन्वेस्ट किस में किया है, ह्यूमन रिसोर्स में. अगर हम कोई भी कंट्री अगर अपने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करता है, तो ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि अच्छी से अच्छी एजुकेशन, ट्रेनिंग अपने लोगों को देना, ताकि, क्योंकि यही लोग जो हैं वो कंट्री में कंट्रीब्यूट करेंगे बाय मेकिंग डिफरेंट इन्वेंशन. और यस, see, due to historical and cultural, there is a division of, okay, now there is a discussion about the men and women कि उनके काम में कैसे फ़र्क था from the earlier to the now time. Yes, so earlier क्या था कि जो ladies हैं, they are supposed to do the household work and men were used to do the outside work or to earn the money for the even the if women were working, the amount of remuneration or the salary or the wages that is given to men or women can be differentiated. तो ये सारे से, yes, but with the changing time, this has been changed. और education और skill को एक important बना के nowadays the most of the women आर इन अ वर्किंग पोजिशन. हाँ, पहले नहीं था, बिकॉज उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं था, है ना. इवन द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में इसका उनको इरेगुलर और लो इनकम दी जाती थी, कोई बेसिक लीव्स नहीं मिलती थी, है ना. बट आज के अगर हम सिस्टम की बात करते हैं, तो दिस ऑल थिंग्स आर देयर इन आवर सिस्टम. यस, सो from that particular first topic, what we come to know कि human resource क्या है, then what are the type of investment, through education, through training and medical
फैसिलिटी। ये 3 क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है, ताकि ऑन द इंडिविजुअल बेसिस भी, देखो कोई माँ बाप हैं वो भी अपने बच्चे के ऊपर इन 3 बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना। कंट्री एज अ होल ऑल्सो इन्वेस्ट इन द पीपल things. Yes, so why? Because to improve the quality of population, और अगर quality of population increase होगी, improve होगी, तो यही population, जो यही generation है, ये higher productivity create करेगी आने वाली generation के लिए. Okay, so in the next video we will continue with the topic quality of population.